हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। उससे पहले आपको कार्बन के बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा, सम इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। About carbon, you know that symbol of carbon is C. Symbol of carbon is C. Anurabha, this portion is not deleted. This basic information will be required. So symbol of carbon is C and its atomic number is 6. You know about electronic configuration. Electronic configuration of carbon is 2,4. And valency of carbon is also 4. Valence electron is 4 and valency is also 4. Carbon forms only covalent bonds with other carbon atoms or with the atoms of other element. With the atoms of other elements. So कार्बन का ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए. Atomic number is 6, its electronic configuration 2,4, valency is 4, and carbon forms only covalent bonds. कौन हमको बताएगा what another term is used for covalent bond? Covalent bond का लिए एक और term क्या है? What another term is used? Okay, molecular bond. Good. Manasvi has given the answer. Covalent bond is also called molecular bond. So I hope you have noted down this part. I'm moving to another part. आज का मेन टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So what are hydrocarbons? You should know. और आप नोटबुक और पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हो सब कुछ. What are hydrocarbons? एक एग्जांपल देने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. Methane is a hydrocarbon. Its formula is CH4. Ethane is hydrocarbon. Its formula is C2H6. So what are hydrocarbons? If I ask you hydrocarbons, they are the binary compounds. They are binary compounds of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. Okay? ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. These elements combine to form that compounds. They are called hydrocarbons. Okay? So हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो मेन ग्रुप में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे. Hydrocarbons can be classified into two main groups. Open chain hydrocarbon, HC मतलब हाइड्रोकार्बन समझना आप लोग, and another is closed chain hydrocarbons. कार्बन एटम का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन एटम विथ अदर कार्बन एटम कैन लिंक टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. कार्बन दूसरा कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं. ओके, ये जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है. और इस स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल प्रॉपर्टी को एक टर्म दिया गया है. दिस टर्म, दिस स्पेशल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड catenation. So what is catenation if I ask you?
Catenation is the special ability of carbon atoms due to which atoms of carbon can link to other carbon atoms by covalent bonds to form long chain. Simple में the ability of carbon atoms to form long chain by covalent bond is called catenation. So हाइड्रोकार्बन्स जो हम लोग दो ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. You note down everything on the screen. स्क्रीन में जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, note down everything and just raise your hand for confirmation. So आज लास्ट में क्वेश्चन राउंड भी होगा 5 मिनट्स. जो भी डिस्कशन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन का फॉर्मूला है C2H6. So if I ask you what are hydrocarbons, they are the binary compounds of carbon and hydrogen. Open chain hydrocarbon and closed chain hydrocarbons are the two groups. Open chain और closed chain क्या होता है, that we are going to discuss. Okay, कृष्णा को डेफिनेशन ये सब मटेरियल में मिल जाएगा आप लोगों को. आपको लिखना है तो you can write. What is catenation? Catenation is that property of an element. ये सिर्फ कार्बन का नहीं, और भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी हो सकता है. Catenation is that property of an element due to which the atoms of element are linked to each other by covalent bonds to form long chains. To form long chains, that chains may be straight, branched, or cyclic. That chains may be straight, branched, or cyclic. Now I'm moving to next part. Okay. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? जस्ट लुक एट हियर. Open chain hydrocarbons. You know that carbon atoms are linked to each other by covalent bond only to form long chains. The long chains may be straight, branched, or cyclic. So open chain hydrocarbon में क्या होगा? Carbon atoms are linked to each other in such a way that first and last carbon atom of the chain are not linked to each other directly by covalent bond. आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. एंड अनदर ग्रुप क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहले आप मीनिंग समझ लो, ओपन चेन कब बोलेंगे और क्लोज चेन कब बोलेंगे. अभी मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल. कैन यू मेंशन द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एटॉम्स ऑफ द कार्बन एटॉम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? शिवेश और मनस्वी ने सबसे फास्ट आंसर दिया. देन कृष्णा, वंदना, वंदना का इनकम्प्लीट है, प्रणति. कैटेनेशन. ओके, कैटेनेशन property is catenation. Property to form long chains of carbon atoms by covalent bond is catenation. So carbon atoms are linked to each other in such a way. यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देखो, कार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. That just wait. कार्बन का वैलेंसी 4 है. कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग. सो इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट एग्जांपल, इस कार्बन के साथ जो मैं एरो मार्क जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, उस कार्बन के साथ आपको कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कैन यू आंसर? फर्स्ट कार्बन के साथ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? ओनली 1. ओके, फर्स्ट कार्बन के साथ 1 दिखाई दे रहा है तो देखना, बोर्ड में देखना आप. ठीक है, 2, 3 एंड 4. ठीक है. सेकेंड कार्बन के साथ आपको कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सेकेंड कार्बन. गुड. सेकेंड कार्बन के साथ आपको 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट में. देन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड कार्बन के साथ ऑलरेडी 2, सो थर्ड एंड फोर्थ. लाइक दैट हम सभी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स यहां एस्टैब्लिश करेगा. नाउ लास्ट कार्बन एटॉम, कितना बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? लास्ट कार्बन एटॉम
only one, so we can connect 1 2 and 3, तीनों कनेक्ट कर दिए। अब इन सभी बॉन्ड में हम लोग हाइड्रोजन एटॉम्स लिंक कर देंगे। तो यही हाइड्रोकार्बन है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, दिस वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसको ओपन चेन क्यों बोलेंगे हम लोग? इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द चेन, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, एंड दिस वन इज द लास्ट कार्बन, सिक्स्थ। फर्स्ट और लास्ट के बीच में कोई डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होने से, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कोई डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होने से दीज आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन फिर आप सोच रहे हैं क्लोज चेन किसको बोलेंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ कार्बन और फर्स्ट के बीच में देखो आप डायरेक्ट बॉन्डिंग है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें ईच कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, ऑलरेडी कितना बॉन्ड है? ईच कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? ईच कार्बन इज हैविंग, दोनों साइड देखना आपको, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज क्लोज चेन। ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है। अगर इनका नेम का बात करें तो आप आज का क्लास एंड होते होते बहुत आपको नाम लिखना भी आ जाएगा। दिस वन, इसका नाम है हेक्सेन, दिस वन इज हेक्सेन, और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, दिस वन इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ओके, सो हेक्सेन एंड साइक्लोब्यूटेन। सो ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, आई थिंक यू अंडरस्टूड, कुछ आइडिया हो गया आप लोगों को। ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ओपन चेन कब होगा? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटॉम, they are not linked to each other directly by covalent bond, and closed chain में first and last carbon atoms they are linked to each other directly by covalent bonds. ओके, अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा आपको सब कुछ डिटेल में। वंदना पूछ रही है कि साइक्लोब्यूटेन कौन सा हाइड्रोजन है या हाइड्रोकार्बन है, क्या पूछ रहे हो? कौन सा हाइड्रोकार्बन? क्लोज चेन है और इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। क्लोज चेन में भी 2 ग्रुप होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। साइक्लोब्यूटेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? साइक्लोब्यूटेन का अपना खुद का नाम हो, खुद एक एंटिटी है। ओके, सो आई डिस्कस्ड अबाउट ओपन चेन एंड क्लोज चेन, और अब हम लोग वापस डिटेल में बात करेंगे अबाउट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो साइक्लोब्यूटेन डायग्राम में कौन सा है? डायग्राम में सेकेंड वाला था डायग्राम में साइक्लोब्यूटेन। नाउ अबाउट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्ट्रेट चेन, straight chain hydrocarbon and branched chain hydrocarbons. Branched chain hydrocarbon. अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है उसको समझने का कोशिश करो आप लोग। कार्बन एटॉम्स अगर एंड टू एंड कनेक्टेड होता है लाइक दिस, देन इट इज स्ट्रेट चेन। और अगर कार्बन एटॉम 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रेट है, और एक कार्बन एटॉम आप देखो वो ब्रांच के जैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो फर्स्ट और लास्ट में नहीं है दैट मीन्स इट इज ब्रांच। ओके, अब ये हाइड्रोकार्बन होने के लिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्बन इज हैविंग 1 बॉन्ड, तो 1 है तो 2 3 4, ऐसे अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप लोग समझ जाओगे। सेकेंड में 2 बॉन्ड्स 3 and 4, थर्ड में ऑलरेडी 2 3 and 4, फोर्थ में ऑलरेडी 2 3 and 4,
फिफ्थ में ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4। ओके, सो अब इनमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन ऐसे लिंक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और ये हाइड्रोकार्बन का नेम है, इट इज 5 है तो इट इज पेंटेन, इसका नाम है पेंटेन। ओके, दिस हाइड्रोकार्बन केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज पूछ रहा है। इट इज C5H12, इसमें 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 है। बट नीचे जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, विद दैट फर्स्ट वन बॉन्ड ऑलरेडी दिखाई दे रहा हम लोग को, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, देन सेकेंड कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, फोर्थ वन, देन थर्ड के साथ ऑलरेडी 2 है, थर्ड एंड फोर्थ, लास्ट के साथ यहाँ पे 1 है, 2 3 4, सबके साथ 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। सो यहाँ भी 4 है। सो इसमें अब हाइड्रोजन हम लोग लिंक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां भी आप अगर ठीक से देखो ये C5H12 है, C5H12, लेकिन इसका एक और कॉमन नेम है। वैसे ये पेंटेन है, दिस वन इज पेंटेन, इसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसका एक और सिस्टम में नेमिंग होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आयुपैक सिस्टम। चिराग पूछ रहा है व्हाई ओनली 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स क्यों है? 4 बॉन्ड्स, कार्बन का वैलेंसी 4 है, इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन ऑलवेज 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए इसका वैलेंसी 4 और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। सो आइसोपेंटेन, इसका एक और नेम है, दैट इज आयुपैक नेमिंग। आयुपैक का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, आई होप यू नो दैट। कोई बताएगा? मनीष पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ केमिकली? दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, केमिकल डिफरेंस नहीं है इनमें, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आइसोपेंटेन यूज इन बोथ द चेन, नहीं, आइसोपेंटेन नीचे जो दिया हुआ उसका नाम है। ओके, सुमित्रा पुरकास्तर, ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज के लिए भी टाइम आएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वैसे C6H12O6। दिशा पूछ रहे सर व्हाट इफ द ब्रांच वाज ऑन द फर्स्ट कार्बन? अगर फर्स्ट कार्बन में आप ये जो ब्रांच बना देते वो ब्रांच चेन होता ही नहीं, उसको स्ट्रेट चेन कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, अगर मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन। अगर मेरे पास 5 कार्बन को मैं ऐसे लगाता हूँ 1 2 3 4 और ब्रांच यहाँ बना देता हूँ, इसको ब्रांच नहीं माना जाता, ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच होने के लिए आपको सेकंड या थर्ड में इसमें लगाना होगा, फर्स्ट और लास्ट में कभी भी ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाता। फर्स्ट एंड लास्ट दे आर कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रेट चेन। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। आज मैं एकदम बेसिक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अरुणबा, if the both the structure is the same, then why second diagram known as isopentane? Isopentane, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, केमिकली दे आर द सेम, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंस। और आइसो बोलने का रीजन है सेकेंड कार्बन में, थोड़ा देर बाद आपको और पता चल जाएगा, नेमिंग मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, फिर भी मैं बता देता हूँ। सेकेंड कार्बन में अगर CH3 होता है, CH3 का मतलब विथ 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, आप देखो यहाँ पे विथ 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन आर देयर, इसको इन शॉर्ट हम लोग CH3 लिख सकते हैं और इसको बोला जाता है मिथाइल ग्रुप। अगर ब्रांच में सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप होगा देन आइसो टर्म यूज किया जाता है एज प्रीफिक्स। ओके, सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का 2 ग्रुप क्या है, स्ट्रेट चेन एंड
branched chain that we are going to discuss. मनीष चौधरी पूछ रहा व्हाई डिड द स्ट्रक्चर चेंज. ओके, ये कार्बन का प्रॉपर्टी है कि कार्बन वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन. इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है. ये कार्बन का स्पेशल एबिलिटी है. और नयन पूछ रहा CH3 क्यों है. CH3 इस कंपाउंड में होता है, उसको सर्च करके आपको बता दिया गया है रिसर्च करके. तो CH3 एक एल्काइल ग्रुप बोला जाता है इसको. आपको धीरे धीरे, अभी मेरा टारगेट था आपको ये समझाना स्ट्रेट और ब्रांच में क्या डिफरेंस है. वो क्लियर है सबका. स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. आपको नेमिंग जो है अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. स्ट्रेट और ब्रांच हैव यू अंडरस्टूड. कब ब्रांच नहीं माना जाएगा. एक क्वेश्चन में बीच में पूछा गया कि अगर लास्ट में CH3 कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसको ब्रांच नहीं माना जाएगा. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम you will have to leave and then you have to connect the branch. ब्रांच में मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, अभी बहुत टर्म जो है आपको पता चलेगा. फिर शिवेश पूछा सर 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन एटॉम्स एंड मिथाइल फॉर्म्स पेंटेन. क्या पूछा उसी को पता चला, हम बता देता उसका क्वेश्चन क्या है. सर 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन एटॉम्स एंड मिथाइल फॉर्म्स पेंटेन. कुछ समझ में नहीं आया. ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाला भी पेंटेन है और सेकंड वाला भी पेंटेन है, दोनों पेंटेन है. ठीक है. और मनीष पूछा सर मीथेन कैसे बना. मीथेन 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन. ओके, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होने से मीथेन. देन करण पूछ रहा आयुपैक का फुल फॉर्म. आयुपैक का फुल फॉर्म यू शुड नोट इट डाउन. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, राजदीप का आंसर मिल गया था. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. So till now I discussed about straight chain and branch chain, लेकिन क्लास का जो मेन पोर्शन है अब स्टार्ट होने वाला है जो आपको बहुत काम आने वाला है. Now हाइड्रोकार्बन्स को एक और तरीका से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. Hydrocarbons can be classified as saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated hydrocarbons. Just wait. Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, they are single bonded hydrocarbons. सिंगल बॉन्डेड यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर again classified into 2 groups. Unsaturated hydrocarbons, they are again classified into 2 groups. Okay, on पहले आप जान लो unsaturated किसको बोलेंगे. They are either double bonded or triple bonded. They are double bonded or triple bonded hydrocarbons. डबल बॉन्डेड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग. अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से डबल बॉन्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से ट्रिपल बॉन्ड. सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. So unsaturated hydrocarbons can be classified into 2 groups. Saturated hydrocarbons को एक और नाम से जाना जाता है. They are also called alkanes.
They are also called alkenes. And unsaturated hydrocarbons can be classified into two groups. They are alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. Okay. Alkenes जो है, they are double bonded. They are double bonded. And alkynes, they are triple bonded. They are triple bonded. So if I ask you what are the two types of hydrocarbons, तो आप saturated unsaturated भी बोल सकते हैं. ओपन चेन और क्लोज चेन डायरेक्टली आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि नेमिंग समझने के लिए उसका आइडिया आपको रहना होगा. So hydrocarbons, if I ask you what are the two groups, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons are single bonded, unsaturated hydrocarbons are double bonded or triple bonded. Unsaturated hydrocarbons are classified into two groups, alkanes, alkenes and alkynes. तो अगर आपको पूछा जाए what are alkanes, तो आपके लिए सिंपल आंसर है alkanes are single bonded hydrocarbons. What are alkenes? Alkenes are double bonded hydrocarbons. What are alkynes? Alkynes are triple bonded hydrocarbons. Alkynes are triple bonded hydrocarbons. The next Jane पूछ रहा, what is the basis? Basis है bonding, single bond, double bond and triple bond. हाइड्रोकार्बन का ये क्लासिफिकेशन का बेसिस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोला जाता है, उसका भी रीजन है. इफ यू लुक एट हियर, लुक एट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो हाइड्रोकार्बन देखना आप. दो कार्बन है इसमें एंड 6 हाइड्रोजन. 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. ओके, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन. इसको सैचुरेटेड बोला जाता है. वंदना पता, एल्कीन्स. एल्केन्स एक बार वापस बता दीजिए. एल्केन्स, एल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, एल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड, एल्काइन्स आर ट्रिपल बॉन्डेड. तो मनस्वी पूछ रही है कि हाइड्रोकार्बन का टाइप्स लिखना हो तो ओपन चेन, क्लोज चेन या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही लिखना है. ओके, सो ये जो हाइड्रोकार्बन मैंने ड्रॉ किया इसका नाम है इथेन. दिस वन इज इथेन. और एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे जिसमें मैंने डबल बॉन्ड दिखाया है. एंड दिस वन, इस हाइड्रोकार्बन का नाम इज इथीन. दिस वन इज इथीन. ओके, एक इथेन और एक है इथीन. इथेन जो है आप देखना, इसमें इथेन में अगर आप थोड़ा सा अलग तरीका से सोचना है यहाँ पे, विद दिस कार्बन कितना बॉन्ड है बता दो मुझे. जो मैंने एनसर्कल किया रेड से, उसमें बॉन्ड कितना है? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 2 लाइंस मतलब डबल बॉन्ड, 2 पैरेलल लाइंस डबल बॉन्ड. जो कार्बन मैंने एनसर्कल किया है उसके साथ कितना बॉन्ड्स है? इफ आई आस्क यू, देयर आर 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 एंड 4. और सेकेंड कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है? इफ आई आस्क यू, सेकेंड कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है? इसका भी आंसर है 4. 1 2 3 और ये वाला भी 4. ओके, 4 बॉन्ड है. अब मैं आपको पूछता हूं, फर्स्ट कार्बन का 4 बॉन्ड्स के साथ कितना एटॉम्स लिंक्ड है? हाउ मेनी एटॉम्स आर लिंक्ड? 4 बॉन्ड्स के साथ कितना एटॉम्स है? देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 देन 3 एंड ये कार्बन भी एटॉम ही है 4. ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सेकेंड कार्बन है इसके साथ कितना एटॉम लिंक्ड है? हाउ मेनी एटॉम्स आर लिंक्ड देयर? तो उसका भी आंसर 4 है. 1 दिस साइड, 2 3
and 4. ओके, सो एक कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड्स और 4 बॉन्ड्स में 4 एटॉम्स, तो क्लास 9 में आपको मिला था सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना कैपेसिटी हो अगर उतना ही होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में, देन इट इज सैचुरेटेड, और कैपेसिटी से कम होगा मतलब क्या, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे आपको इथेन इज कॉल्ड सैचुरेटेड, लेकिन इथीन अनसैचुरेटेड क्यों है, देखो यहाँ पे विद दिस कार्बन, इफ आई आस्क यू, इस कार्बन का कैपेसिटी कितना एटॉम्स का है, एक कार्बन कितना एटॉम्स के साथ लिंक हो सकता है, 4, मैक्सिमम 4, लेकिन यहाँ पे कितना के साथ लिंक्ड है, इस पर्टिकुलर दिस केस कितना एटॉम्स के साथ लिंक्ड है, 3, 1, 2 एंड 3, होना कितना के साथ चाहिए, 4, लेकिन 3 ही है यहाँ पे, इसीलिए अनसैचुरेटेड। लेकिन सेकेंड कार्बन, यहाँ पे सेकेंड कार्बन, इसके साथ भी कितना एटॉम्स है, 1, 2, 3, एटॉम तो 3 है, सो 4 एटॉम्स हो सकता है लेकिन 3 ही एटॉम है, इसीलिए अनसैचुरेटेड बोला जाता है। Saturated hydrocarbons are also called alkanes. Unsaturated hydrocarbons are classified into 2 groups. They are alkenes and alkynes. What are the 2 groups? Alkenes and alkynes. आप चाहो तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो if you want. Okay, I am moving to another part. अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सिवेश ने क्वेश्चन पूछा है, सर ऑल हाइड्रोकार्बन्स कैन बी मेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यस, जितना भी हाइड्रोकार्बन आप जानते हो उसको 2 ग्रुप में आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नाउ फॉर नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के लिए कुछ बेसिक्स आप लोग को जानना है। आपको कुछ प्रीफिक्स जानना है एंड कुछ सफिक्स जानना आपको। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास का नेक्स्ट पार्ट। प्रीफिक्स, दे आर मेथ, इथ, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dec। जो कॉमन सफिक्स हाइड्रोकार्बन में यूज होता है, दे आर ANE, ENE and YNE। ANE for carbon carbon single bond, ENE for carbon carbon double bond, YNE for carbon carbon triple bond। ओके, तो अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होगा तो लास्ट में ANE रहेगा सफिक्स, डबल बॉन्डेड होगा तो ENE होगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो YNE होगा। तो अब आप नाम से आप पहचान जाओगे वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या फिर ट्रिपल बॉन्डेड है। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन हियर, आपको जानना है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सब सब्सक्रिप्ट में होगा, N2n और 2। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एंड देन एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2, alkyne. So what is the general formula of alkane? CnH2n+2, alkene CnH2n and alkyne CnH2n-2। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन में N आपको बताएगा नंबर ऑफ
कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर हाइड्रोकार्बन में 1 होता तो प्रीफिक्स होता है मिथ, 2 होने से इथ, 3 होने से प्रॉप, 4 होने से ब्यूट, 5 होने से पेंट, 6 होने से हेक्स, 7 होने से हेप्ट, 8 होने से ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। तो अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछता हूं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया है उसी से आपको पता चल जाएगा। चलो देखता हूँ कौन दिमाग यूज करता है। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, एनी वन ऑफ यू? हर्ष अग्रवाल ने आंसर दे दिया, मनीष का आंसर रॉन्ग है, वंदना का रॉन्ग है, चिराग का करेक्ट है, वन्या का रॉन्ग है, तनिष्क का भी रॉन्ग है, सांची करेक्ट है, राजदीप करेक्ट है, प्रणति करेक्ट है, मनीष चौधरी के नाम करेक्ट, किंजल मनस्वी करेक्ट है, जयंत रॉन्ग है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखना, हेक्सेन का पूछा है, किसका पूछा मैंने? हेक्सेन। तो हेक्सेन देखने से मुझे पता चल जाता है हेक्सेन एल्केन है। कैसे पता चलता है? सफिक्स से, सफिक्स से। और हेक्स का मतलब एन का वैल्यू 6 होगा, यहां से पता चल गया एन का वैल्यू क्या होगा? 6। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला यहां लिखना है CnH2n प्लस 2, C6H2 into 6 plus 2, C6H12 plus 2 that is 14। और ये फॉर्मूला है हेक्सेन का। सबको समझ में आ गया हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कैसे फाइंड आउट किया हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ओके, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अगर मैं आपको पूछूं अनदर क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाए हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हेक्सीन, ENE, और इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सीन। मनीष चौधरी ने आंसर दिया है, हर्ष अग्रवाल, तनिष्क चेन, सिद्धांत, सुमित्रा, करण, राजदीप, सांची, दिशा, कृष्णा, विवेक, प्रियल, अरुणभा। सो सबने करेक्ट आंसर दिया एंड आपको बेसिक पता चल गया। हेक्सीन इज एल्कीन, हेक्सीन इज एल्कीन। एल्कीन और हेक्स का मतलब एन का वैल्यू 6। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज व्हाट? CnH2n। तो C का वैल्यू यहाँ पे 6, तो H का 2 into 6 will be 12, C6H12। Now हेक्साइन, हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? If I ask you हेक्साइन, दिशा, चिराग, मनीष, करण, शिवेश, विवेक, प्रणति, सुमित्रा, सांची, सिद्धांत, कृष्णा, हर्ष अग्रवाल का रॉन्ग है दिस टाइम, वन्या, तनिष्क, जयंत, वंदना, हिमांशु ऑल आर करेक्ट। हेक्साइन बोलने से हेक्साइन इज एल्काइन, हेक्साइन इज एल्काइन, नाम से पता चल जाता है हेक्साइन इज एल्काइन। एंड एन का वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, सो इट इज CnH2n minus 2 फॉर्मूला आएगा एल्काइन। सो C6H12 minus 2, C6H10, C6H10। ओके, तो ये वाला जो स्क्रीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए आप लोगों को। Why there is always -2 in the formula? कर्ण ने पूछा कौन किसका फॉर्मूला में? हेक्साइन में -2 मतलब हाइड्रोजन कम होता है उसमें, 2 हाइड्रोजन कम होगा एल्कीन से।
और एल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम होता है एल्कीन से, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड बनना पड़ता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनना पड़ता है। मैं अभी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा और आइडिया होगा। प्रियांशी सर, हमेशा ये 3 एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से ही रिलेटेड आएगा। नहीं, इसमें अभी तो ये ब्रांच चेन भी आएगा, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है प्रियांशी। बस तुम रेगुलर क्लास करते रहना, क्योंकि तुम जो बीच बीच में गायब हो जाता है उससे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो आना है। बस क्लास रेगुलर करना चाहिए। स्कूल का एग्जाम है तो भी क्लास पे फोकस रखो। एग्जाम का आधा महीना पहले, 1 महीना पहले से अगर आप डिसअपियर हो जाओगे, देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम। ओके प्रियांशी, प्रियांशी 9 से ही रेपुटेशन खराब है एब्सेंट का। अभी 10 में भी आधा तो निकल गया है। एब्सेंट होने से एक क्लास भी अगर एब्सेंट होगा इस चैप्टर में, मैं जब शुरू करूंगा, अभी तो मैंने आज बेसिक्स दिया था कि आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो अगर स्कूल में स्टार्ट भी होता है। असली चैप्टर है ये। इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री का अनदर चैप्टर। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन। आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा शायद। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन। अब अगर मैं बोलता हूं पेंटेन, पेंटीन एंड पेंटाइन, तो कौन हमको पहले पेंटेन का फॉर्मूला बता रहा है? दिशा ने सबसे फास्ट बताया, दिशा ने। ओके, बाकी सब अब आराम से बताते रहो। दिशा ने करेक्ट आंसर दिया और सबसे फास्ट पेंटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेंटाइन का क्या फॉर्मूला होगा? पेंटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन। हम तुम लोग का समझ गए ना? तुम लोग जानता ना, हम जब क्वेश्चन पूछेगा तो अलर्ट रहना होगा। पेंटाइन, गुड। पेंटाइन पूछा और तुम लोग फंस गया सेकंड में। आई हैव आस्क्ड अबाउट पेंटाइन और बहुतों ने करेक्ट आंसर भी दिया है। और कौन सबसे फास्ट दिया हमको पता नहीं चला, इतना फास्ट सबका आंसर आया। सो पेंटेन इज C5H12, pentene is C5H10 and pentine is C5H8। ओके, अब आप लोग देखना, मुझे नाम से पता चल जाता है कि पेंटेन सिंगल बॉन्डेड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, पेंटीन में डबल बॉन्डेड होगा क्योंकि ENE है, और पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ड्रॉ करूंगा। ये जो फॉर्मूला मैंने इस रो में लिखा है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब मैं जो ड्रॉ करने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ओके, पेंटेन में सब सिंगल बॉन्डेड होगा, तो मैं, मुझे कार्बन में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, तो 3 और लगा देता हूँ इधर, 1 2 3। सेकेंड में 2 दिखाई दे रहा है, 2 और लगा दिए। फिर ऐसे करके बस काउंटिंग करके 4 बॉन्ड होना चाहिए इन टोटल। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अब सेकंड में हमको पेंटीन के लिए ड्रॉ करना, तो डबल बॉन्ड देना है। डबल बॉन्ड सभी कार्बन के बीच में नहीं देना आपको, कोई भी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दे देना। आप फर्स्ट सेकंड के बीच में भी दे सकते थे, मैंने सेकंड थर्ड के बीच में दिया है। सो फर्स्ट कार्बन ओनली 1 बॉन्ड इज देयर, 2 3 4।
सेकेंड कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पहले से है तो एक और दे सकते हैं, थर्ड के साथ पहले से 3 है एक और दे सकते हैं, फोर्थ के साथ 2 बॉन्ड है 2 और दे सकते हैं, लास्ट में 1 बॉन्ड ही है तो 3 और लगा सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन लिंक कर देंगे हम लोग। ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, और इसको ज्यादा प्रॉपरली इसको बोला जाता है आईयूपैक सिस्टम में, इट इज पेंट टू ईएनई, पेंट टू ईएनई। और इसके बाद पेंटाइन है, पेंटाइन। तो वैसे ही पेंटाइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, इस बार ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे दे दिया। ओके, तो पहला कार्बन में 1 2 3 लगेगा, सेकेंड कार्बन में ऑलरेडी 4 है, थर्ड कार्बन में ऑलरेडी 4 है, फोर्थ कार्बन में ऑलरेडी 2 है 3 4, फिफ्थ कार्बन में ऑलरेडी 1 है 2 3 and 4। सो दिस इज पेंटाइन। और मोर प्रॉपर्ली आईयूपैक सिस्टम नेमिंग में जब समझाया जाएगा आपको पता चलेगा इसको क्या नाम देना चाहिए। अभी आप गेस कर सकते हो, एनी वन ऑफ यू, कोई गेस कर सकते हो इसका क्या नाम होना चाहिए? ओके, मनीष चौधरी सबसे फास्ट है, मनस्वी सोनी ने भी दिया है, तनिष्क और कृष्णा। आईयूपैक का फुल फॉर्म नहीं पूछा था, आई वास्ड कि इसका आईयूपैक नेमिंग में क्या, नेमिंग सिस्टम में नाम क्या होगा, और इसका नाम होगा पेंट, पेंट टू, पेंट 3 नहीं होगा, पेंट टू वायनी, पेंट टू वायनी। जिन्होंने 3 दिया था वो रॉन्ग है। वंदना ने पूछा बट पेंटेन में तो सेकेंड वाला में 3 ही है, 4 होना चाहिए था। सेकेंड वाला में 3 है 4 होना चाहिए था, कौन सा वाला का बोला? सेकेंड वाला में ऑलरेडी 3 बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन लगा दिया। आपको चारों तरफ मिला के काउंटिंग करना है बॉन्ड कितना है, चारों तरफ मिला के काउंटिंग करना होगा बॉन्ड कितना है। तनिष जैन, वाई 2 ऑलवेज? 2, ये 2 का रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ, 2 ऑलवेज नहीं होगा। अभी 2 क्यों है उसका रीजन यहाँ पे है कि ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इन दिस केस इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, और यहाँ भी ये बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में होने से ये 2 यहाँ कंसिडर किया जाता है। ओके, एक और एग्जांपल में देने से आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 5 6 7, और मैं इस बार इधर डबल बॉन्ड दे देता हूं, और बाकी सब में हाइड्रोजन में लिंक करने वाला हूं। आप लोग इसका नाम सोचिए। इसमें 3 पहले से है तो एक ही लगेगा, इसमें भी 3 पहले से एक ही लगेगा, और हर्ष अग्रवाल ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, इसमें 2 लगेगा, और इधर 1 and 2, यहाँ पे 1 2 and 3। सो दिस वन, इसका नाम बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया है। वैसे ये हेप्टीन है, हेप्टीन, HEPTENE, लेकिन ज्यादा प्रॉपर्ली इसको हम लोग बोल सकते हैं हेप्ट 3ENE, हेप्ट 3ENE more properly। okay, hept 3ENE। just take the screenshot if it is required। वंदना पूछ रही 3 क्यों? 3 क्योंकि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ के बीच में है डबल बॉन्ड, इसलिए 3। थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए 3।
ओके। सो अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल, अगर मैं आपको पूछूं ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कौन पहले बताता? ऑक्टेन। अगर आपने नोटबुक में नोट डाउन किया है तभी आप बता पाओगे आंसर जल्दी। ऑक्टेन। तनिष्क जैन, मनीष चौधरी, वंदना प्रजापति, तीनों ने करेक्ट आंसर दिया है। सांची, हर्ष अग्रवाल, दिशा, किंजल, ओके, शिवेश, जयंत, कृष्णा, प्रियांशी। ऑक्टेन इज C8H18। ठीक है, अब आपको एक और अगर पूछा जाए यहाँ पे, इफ आई आस्क यू if I ask you formula of hexane, any one of you? Hexane. गुड। तनिष्क ने सबसे फास्ट, देन सांची, दिशा, आंसर करेक्ट है आपका C6H10। तो आज का क्लास का टारगेट ये था कि आप लोगों को इस चीज में कंफर्टेबल फीलिंग आना चाहिए कि मैं कुछ नाम बोलूंगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला पता चल जाए। लोकेश, समझ में आ रहा है हमको तुम्हारा प्रॉब्लम? तो आज का टारगेट ये था। नेक्स्ट क्लास तक आप इस चीज को दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्लास इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फॉर टुडे यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास।